Assalamualaikum. The second video we are here with the second video of arithmetic operations. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि since there are a lot of arithmetic instructions in assembly language, therefore what we'll do is we'll divide the lectures into two different halves. Arithmetic operations 1, arithmetic instructions 1 and 2. So right now, this lecture will focus on some complex arithmetic instructions as we discussed the basic ones already. Basic one में हमने आप लोगों ने देखी होगी वीडियो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है हमने उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिंपल डिवीजन then how do you perform different signed and unsigned multiplication and division. So हमने ये सारा कुछ जो है उसमें देखा था. अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं दे आर लिटिल कॉम्प्लेक्स वंस. मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं. फॉर इंस्टेंस अच्छा अरिथमेटिक सिंपल अरिथमेटिक में मैं दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जिसको मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में एड्रेस कर लूँ. That is increment and decrement की commands. Increment although we have already used when we did our first programming lecture, उसमें भी हमने increment को use किया था. And as the name suggests, it actually adds one or increments one into the existing number. That number or that value can be given directly or through memory location or through register. So if you see यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है R और memory, that doesn't mean कि यहाँ पे और का कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे सिंपल और इज इन द मीनिंग ऑफ इंग्लिश और कि आप या तो उसको रजिस्टर के थ्रू से दे सकते हैं. दैट इज सिंपली एड्रेसिंग मोड कि इधर इट कैन बी एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इट कैन बी immediate or direct addressing mode. So they are the possibilities that we have. ठीक है, तो सिंपल इंक्रीमेंट की वो क्या है, कमांड क्या है कि यू राइट इंक्रीमेंट, यू राइट नेक्स्ट टू इट यू राइट ऑपरेंड. ऑपरेंड मे बी a number or it can be a register given number or it can be a memory location at which the number is present and you increment it by 1. And similarly with the case of decrement कि आप डिक्रीमेंट का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन सम रजिस्टर मेमोरी और डायरेक्ट नंबर as per your requirement of the program. So let's discuss the other ones जो थोड़े ज़्यादा complex हैं instruction sets में. The one we have is CBW. CBW is called convert byte to word. जैसे कि हमें पता चल रहा है अगर आप लोगों को याद हो कि हम C++ या पाइथन में हम टाइप कास्टिंग करते हैं. टाइप कास्टिंग का मतलब कि हम एक टाइप ऑफ डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो ये सॉर्ट ऑफ सेम चीज़ है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट कि यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि डेटा टाइप is as such not a different type of data because we either have strings or we have integers and then we have signed or unsigned numbers, but eventually the problem is with the size of register or size of data. So it mostly the data types here is in assembly language. आपको याद होगा कि हमने 5 तरह की data types पढ़ी थी, DB, DW, DD, DQ and DT. तो that is कि आपका जो एक type of है डेटा साइज उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक यू कन्वर्ट बाइट which means 8 bits to a word which is 16 bits, right? As it says it only works on accumulator, which again देखो अगर आप लोगों को यहाँ एड्रेसिंग मोड्स याद हो तो लास्ट एड्रेसिंग मोड था जिसमें आपको यू डोंट नीड टू गिव द ऑपरेंड स्पेसिफिकली. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो there is understood thing that if this instruction will be applied, this will be applied on accumulator only. So CBW is basically works only on accumulator. आगे क्या लिखा हुआ है उस पर मैं बाद में आती हूँ. अगर आप देखो simply what if I have to I have a data of 8 bits and I have to convert it into a 16-bit data without changing the
द वैल्यू ऑफ द डेटा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास इसमें 1 and 2 12 पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे मेरे पास दिस इज 12 राइट इन बाइनरी, तो आई डोंट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ 12 but I want to change it from 16 bit 8 bit to 16 bits of data. So this is a simple case that we add zeros before MSB. लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि what if I have to uh, now I have to convert this data, convert this byte into a word. Am I going to add zeros before MSB? No. If you see here, I have added ones into one before MSB. Why have I done that? A simple reason is कि अगर आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स गौर से सुने हैं और आप लोगों को साइंड अनसाइंड नंबर्स याद हैं, आपको ये पता है कि साइन फ्लैग कैसे चेक करते हैं, तो आपको ये नोटिस किया होगा कि ये नंबर वाज पॉजिटिव नंबर, राइट? This number may or may not be a negative number, which means that it can be a signed number. It is not an unsigned number. It cannot be treated as an unsigned number. ठीक है? क्योंकि इसकी most significant bit is 1. If you know that it is and most significant bit is 1, that means that this is a sign. This is a negative number. Eventually, साइन नंबर में भी ये नंबर क्या है, नेगेटिव है. सो उसमें अब क्या होगा कि वी नो दैट साइंड नंबर्स, अगर फॉर एग्जांपल अगेन आप लोगों को साइन नंबर में बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, तो शायद वो पार्ट ऑफ दिस लेक्चर भी नहीं है, दिस वो भी नहीं है, लेकिन अगर वो समझ ना आ रहे हो तो आपको बहुत सारे ऑपरेशन समझ नहीं आते. इफ़ वी हैव 7 फॉर इंस्टेंस, आई हैव बाइनरी ऑफ 7 011 सिंपल 4 बिट का बाइनरी मैंने लिखा है, एक निबल. It can either be a positive number or it can be a negative sign number, minus sign number. That is the case in signed numbers, right? Signed numbers में 7 can be either positive or negative. Negative 7 को हम किस तरह से represent करते हैं? Simply taking the 2's complement of this number, right? अब अगर मैंने इसका 2's complement लिया है, तो आपको पता है कि 2's complement के दरमियान में अगर मैं इसे पहले से ही change करूँ, if I change this number into this, into 8 bit, that means मैंने इसको 4 से 8 में change किया, तो I have positive के केस में I have simply added zeros in front of it. लेकिन I have to extend a negative number here, so that is understood कि negative number में most significant bit will be 1, और अगर मैं इसे कहूँ कि अगर मैं इसे 0 0 पहले ऐड करूँ and then I take the 2's complement, तो वो यही फॉर्मेशन बनेगी, यानी there will be ones at the start of it. So negative numbers के केस में इसलिए मैंने यहाँ ones ऐड किए हैं. Basically the whole concept is, you can simply memorize it or you can learn the concept, you can understand the concept behind it. Basic point is that negative numbers exist not in their true binary forms, they exist in their 2's complement form, and when if I write zeros in front of it, before MSB, and I convert the whole number into its 2's complement form, it will be this number exactly. आप लोग convert करके देख सकते हैं, you know the steps how to convert any number into 2's complement form, right? तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि it should only be used for signed numbers. CBW is only used, this command is only used for signed numbers. It is not used for unsigned numbers. Obviously you can in case of unsigned numbers you can simply add zeros to make a number, extend the number into a 16 bit, right? इसी तरह आपके पास एक और कमांड है, दैट इज कॉल्ड CWD, कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड. अगेन वर्ड का मतलब 16 बिट्स, सो यू कन्वर्ट 16 बिट डेटा इनटू डबल वर्ड विच इज 32 बिट्स डेटा. अब अगेन आप कहेंगे कि हम 32 बिट्स को कैसे स्टोर कर रहे हैं इनटू अ 16 बिट आर्किटेक्चर. तो अगेन वही वाली बात कि यू यूज AX एंड इट्स एक्सटेंडेड रजिस्टर. हमने कहा था ना कि हम DX को, डेटा रजिस्टर को एज अ एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर भी यूज़ करते हैं. अगर आप उसकी डेफिनेशन में देखें तो ये लिखा हुआ है कि हम उसे एज एन एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर भी यूज़ करते हैं. So in multiplication operations as well as where you need to extend the data size, you have to use DX along with AX. So lower half of the data will be stored into AX first, AX में storage होगी, then the remaining higher part will be stored into DX, right?
तो अगर मैंने AX में कोई भी वैल्यू है और अगेन एक्यूमुलेटर के ऊपर ही CWDV अप्लाई होगा, सो इफ इट इज अप्लाइड, बिकॉज मैंने कहा था 16 बिट ऑफ डेटा को, वर्ड को मैंने डबल वर्ड में 32 बिट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन कि मैंने अगर AX पे अप्लाई किया है तो आंसर विल बी स्टोर्ड इनटू DX एंड AX कंबाइनली। आई होप इट्स क्लियर सो फार। अब अगर आप देखें तो निगेशन एंड बेसिकली नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है, इट्स नॉट सिंपली निगेशन एज इन लॉजिकल ऑपरेशंस, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशंस में निगेशन मींस सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस में नेगेटिव ऑफ BL simply means that it exists in its 2's complement form. Obviously हमने कहा था कि negative of any number in binary can be calculated as its 2's complement. तो even if कि वो नेगेटिव नंबर है, आप उसका अगेन नेगेटिव नंबर करेंगे तो वो उसी का काउंटर पार्ट पॉजिटिव काउंटर पार्ट बन जाएगा, या पॉजिटिव नंबर का अगर आप 2's complement देंगे तो इट विल बिकम अ नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ इट. सो अगेन you apply it on any register and the value within the register will be converted into its 2's complement form and will be stored again into the same register, right? यहाँ पे कोई source और destination वाला जो है logic वो नहीं है. Now if you see the next one, ये थोड़ी interesting है instruction. It is called CMP BL, AL or any registers as a matter of fact. Like यहाँ पे जो आपका I'm sorry, जो आपका addressing mode है, that is register addressing mode, because you are comparing two registers. But it is not necessary, जो मैंने example लिया उसमें ये case है, लेकिन it's not necessary कि आपने register addressing mode को ही use करना है. जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो मैंने क्या किया हुआ है, एक register को एक value से भी compare करवाया हुआ है, तो we'll look into it as well. अच्छा, compare का मतलब again CMP is compare. You have to compare two values which are numeric in nature. Binary है तो obviously they are numeric in nature. No matter what do they represent, they again are in numbers form, so they are somehow numeric. It will not, क्या करता है, सिंपल अगर आपने दो चीज़ों को न्यूमेरिक वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो a simple method of it can be that you take the difference of these two. राइट, आप उनका अगर माइनस उनका सब्ट्रैक्शन या उनका डिफरेंस ले लें आपस में, तो क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि देयर कैन बी ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, इधर BL इज ग्रेटर देन CL, इधर BL इज इक्वल टू CL और BL इज लेस देन CL. 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना इस केसेस में. इफ यू आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज, two numeric values, there are only three possibilities. Either the first value is greater than second value, either the second value is greater than first value, or both values are equal. That's the only case. लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कंपेयर और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या हुआ, तो सब्ट्रैक्शन में इट्स BL will store the value. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि it will not store the result but will check the flags. ठीक है, अब यहाँ पे flags कैसे वो हो रहे हैं, इनकॉपरेट हो रहे हैं, ये देखते हैं हम लोग. जब आपने दोनों नंबर्स को डिफरेंस लिया BL माइनस CL, तो यू कैन चेक द फ्लैग्स बिकॉज देयर इज an arithmetic operation which is being performed, which means it will definitely affect the flags, and the information of updated flags may help us in finding out our required results, right? तो ये एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि जीरो फ्लैग तब जीरो होता है जब आंसर जीरो हो, विच मीन्स कि अगर ये इन दोनों का यानी डिफरेंस का आंसर जीरो है, दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है, एग्जैक्ट सेम है. ओनली दिस इज द केस जबकि जीरो फ्लैग जो है वो वन हो सकता है, यानी कि जीरो फ्लैग वन तब होता है जब उसमें जब आंसर जो होता है अरिथमेटिक का वो जीरो आए. तो इन दोनों का आंसर जीरो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी. दैट मीन्स कि हम लोग किस किस को यूज करें, जीरो फ्लैग को, कैरी फ्लैग को, टू चेक दैट, टू कंपेयर टू वैल्यूज. ठीक है, तो मैंने ये कहा कि अगर जीरो फ्लैग तो सिर्फ उसी केस में वन हो सकता है जब दोनों बोथ वैल्यूज आर एग्जैक्टली द सेम. इसके अलावा जब जीरो फ्लैग जीरो भी है, इट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन, एट लीस्ट इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट दिस कंडीशन कैन नॉट बी ट्रू एवर, क्योंकि
अगर तो कैरी जो जीरो फ्लैग है वो जीरो है, दैट मीन्स जीरो है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बी एल इज नॉट इक्वल टू सी एल. सो इट एक्चुअली टेल्स अस दैट देयर कैन बी ईदर ग्रेटर और लेसर रिलेशनशिप. ठीक है, तो उसके लिए अब हमें ये पता चल गया कि एक ही फ्लैग से तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही. बट ऑन द अदर हैंड वी कैन चेक के जो हमारे पास ये है दूसरा फ्लैग, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कैरी फ्लैग मैंने बताया था कि बोरो विल ऑल्सो अपडेट कैरी फ्लैग, राइट. अगर बी एल इज स्मॉलर देन सी एल, दैट मीन्स आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करो, देयर विल बी श्योरली अ बोरो, विच मीन्स कि कैरी फ्लैग विल बी अपडेटेड. सो ये कैरी फ्लैग वन सिर्फ उसी केस में होगा जब बी एल इज लेस देन सी एल. जब ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है देन देयर विल बी कैरी फ्लैग बिकॉज ऑफ द बोरो. ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको बोरो लेना पड़ेगा. This case cannot be true, like in this case it will be zero and in this case it will be zero again. So that means कि अगर zero flag दोनों zero है और carry flag भी zero है, in that case value BL is greater than CL and other cases are something we have already checked, right. अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि ग्रेटर वैल्यू और लेस वैल्यू का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं. सो व्हाई आर वी नॉट चेकिंग साइंड फ्लैग, कि हम उसमें से साइन फ्लैग क्यों नहीं चेक कर लेते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को भी कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वो वैल्यू ग्रेटर है या लेस है. लेकिन एज यू रिमेंबर मैंने बताया था जब हमने साइन फ्लैग्स को डिस्कस किया था दैट साइन फ्लैग इज नॉट अ वेरी रिलायबल फ्लैग, क्योंकि इट कैन गिव यू एन ऑपोजिट आंसर in case of overflow. तो that means कि अगर हम साइन फ्लैग को चेक करते हैं तो उससे पहले हमें ओवरफ्लो को चेक करना पड़ेगा. तो उसका काम हमारे पास यहाँ जो है वो कैरी फ्लैग से भी हो जाता है. सो इंटेल हैज डिजाइंड इट्स प्रोसेसर सो दैट in case of comparison it not only subtracts the value, it doesn't store the result. क्योंकि देखो आप BL और CL को सिर्फ कंपेयर करना चाहते हैं. कंपैरेटर भी आप लोगों को याद होगा DLD में, उसमें भी यही तीनों केसेस होते थे. इधर वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन, फर्स्ट वैल्यू कैन बी ग्रेटर, सेकंड वैल्यू कैन बी ग्रेटर और दे कैन बी इक्वल. यही तीन लॉजिकल इन्फ्रेंसेस हैं जो हो सकते हैं इस केस में. लेकिन आप कभी भी BL और CL की एक्चुअल वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कंपैरिजन में. फॉर इंस्टेंस BL इज योर मार्क्स इन सेकेंड ईयर एंड CL आर योर मार्क्स इन थर्ड ईयर. यू जस्ट वांट टू कंपेयर देम, यू जस्ट वांट टू टेक अ डिफरेंस एंड सी के भाई उनमें से कौन से ज़्यादा हैं. ये नहीं करना चाहते आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाए किसी में. दैट इज़ वाई जब BL माइनस CL होता है कंपेयर के केस में, तो इट डजंट स्टोर द वैल्यू. जो इवेंचुअली रिजल्ट आता है वो स्टोर नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है CF और ZF को चेक करता है एंड इवेंचुअली वो उसी के हिसाब से एक रिजल्ट जो है वो जनरेट कर देता है, ग्रेटर लेस और इक्वल का. ठीक है. सिमिलरली दिस इज द केस कि अगर मैं कह रही हूँ कि AL 17H है, अगर ये इस कमांड के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है कंपैरिजन का, तो क्या होगा कि AL में कोई भी वैल्यू हो सकती है. अभी फिलहाल के लिए मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करी कि क्या वैल्यू, बट यू वट एवर इज स्टोर्ड इन AL यू हैव टू कंपेयर इट विद 17H. आई हैव टू डू द मैथ्स, राइट. मैंने क्या करना है, AL में से 17H माइनस किया. ठीक है ना, यही प्रोसेसर कर रहा होगा, उसने माइनस किया. उसके बाद CF और ZF में कोई ना कोई चेंजेस आए. फॉर इंस्टेंस अगर तो ZF इज ऑलरेडी 1, दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, विच मीन्स कि AL में भी 17H ही है. बट इफ इट इज नॉट 1, दैट मीन्स कि द वैल्यूज कैन नॉट बी इक्वल एवर. कैरी फ्लैग कुछ भी हो, वो दोनों 1 नहीं हो सकती, दोनों सेम नहीं हो सकती वैल्यूज. अगर जीरो फ्लैग 1 है तो दैट मीन्स कि देयर आर अदर टू केसेस, either greater than 0, greater than CL or AL is less than 17, right. उस केस में हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि कुछ बोरो हुआ है या नहीं हुआ. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर उसने कुछ बोरो लिया है तो दैट मीन्स के कैरी फ्लैग में 1 आएगा. दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन, यानी कि जो AL है दैट इज लेस देन
17H, मे बी यहाँ पे 14H हो या 15H हो या कोई भी वैल्यू हो, सो दैट मीन्स दिस इज लेस देन दैट, क्योंकि अगर आपने एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करना था, यू डेफिनेटली नीड अ बोरो, दैट इज व्हाई योर कैरी फ्लैग वाज अपडेटेड। ठीक है, और अगर ये केस भी ना हो और दोनों जीरो हैं, जीरो फ्लैग भी और कैरी फ्लैग भी, इन दैट केस इट इज डेफिनेट दैट AL इज ग्रेटर देन 17H। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अगेन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, मैंने कहा था कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड DAA। अगर आप लोग स्लाइड्स में भी देखें तो आपके पास AA, DAA, जो मैंने आपसे कहा था कि ये नेक्स्ट जी, DAA, AAA, ये मैं सारी वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोगों को एक भी इंस्ट्रक्शन समझ आ जाती है, others are just the variations of the same instruction. Okay, so DAA is called decimal adjust after addition। अब ये क्या सिचुएशन है, हमने ये देख लिया कि अच्छा कैरी हो सकता है और कैरी के साथ कुछ हम विदाउट कैरी ऐड कर सकते हैं, विद कैरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल एडजस्टमेंट क्या है? डेसिमल एडजस्टमेंट ये है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं वापस फिर से रिमाइंड कराऊँ, आप लोगों में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ही DLD पढ़ी है, एंड इफ़ यू विल नॉट रिमेंबर दिस आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स बड़े डिटेल में करवाए होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा बैक जाएं और मेरे साथ थोड़ा सा ये रिव्यू करें कि अगर आप लोगों को BCD एडिशंस याद हो, सिंपल BCD की कोडिंग क्या होती थी? बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, और you call them, they are decimals but they are coded as binaries, which means every decimal in, if you represent any decimal value in any one digit decimal value with 4 bits of binary, that means कि ये this is the BCD of this। तो अगर आप देखें तो हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी तो ऐसे ही कन्वर्जन करते हैं ना, ईच हेक्साडेसिमल वैल्यू इज रिप्लेस्ड विद 4 बिट बाइनरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे BCD और हेक्साडेसिमल में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट 9 वैल्यूज ऑफ हेक्साडेसिमल इन BCD एक्चुअली मैच, 0 से 9 तक तो वैल्यूज जो हैं डेसिमल, BCD और हेक्साडेसिमल में सेम ही है। ठीक है ना, उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी सेम है 0 से 9 तक। If we are taking a 4-bit binary, that means we can actually generate codes for 16 numbers 0 to 15, जिसको हम हेक्साडेसिमल में फर्दर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ABCD up to F। दैट मीन्स कि जब हम कह रहे हैं कि वैल्यूज जो हैं वो ओनली बाइनरी कोडेड डेसिमल्स हैं, विच मीन्स के एक्चुअल वैल्यूज आर डेसिमल। इनकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, सिंपल आपका कैलकुलेटर इन द लैपटॉप। ठीक है, मैं अगर लैपटॉप में कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, ऐप ऑफ द कैलकुलेटर, यहाँ पे जो मैं नंबर्स दूंगी दे आर गिवन इनटू डेसिमल नंबर्स, राइट? वो कोई भी डेसिमल नंबर के नंबर्स हैं, उनका आंसर भी मुझे नॉर्मल डेसिमल नंबर्स में ही चाहिए। अगर मेरा अनटिल अनलेस के मैं कोई यहाँ से सिलेक्शन करूँ कि ये मुझे हेक्साडेसिमल में किसी और नंबर सिस्टम में आंसर दे, इसके अलावा इसे मुझे स्टैंडर्ड आंसर जो है वो डेसिमल नंबर में ही देना चाहिए। बट अगेन दिस ऐप इज वर्किंग ऑन द प्रोसेसर, ऑन सम प्रोसेसर विच इंटरनली वर्क्स ऑन हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसर के लेवल पे हैं, they are into hexadecimals and further converted into binaries, into machine code। तो अगर मैं वहाँ पे एंटर कर रही हूँ अपनी वैल्यूज एंड आई एक्सपेक्ट द आंसर टू बी बिटवीन 0 to 9, क्योंकि मैं तो डेसिमल नंबर में ही हूँ। एक्चुअल जितनी भी आपकी अर्थमेटिक्स परफॉर्म होती हैं, जितने भी डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, दे आर ऑल इन डेसिमल नंबर्स, राइट? जो बाकी रिप्रेजेंटेशन हैं दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू मेक द कंप्यूटर और मशीन अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोगों को BCD एडिशन याद हो तो क्या होता था कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है BCD में,
तो आई टोल्ड यू कि आंसर शुड बी लेस देन 9। वहां पे आपको याद होगा 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे कि आप जब भी आंसर लिख रहे हैं दैट शुड बी, ये अगर मैंने 35 और 15 को ऐड किया है तो आंसर शुड बी 50, राइट। यहाँ अगर मैं 35 का बाइनरी और 15 का बाइनरी ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास इनवैलिड केसेस आते थे बीसीडी के एडिशन में, अगर आप लोगों को याद हो तो। जब मैंने इनको ऐड किया तो इट बिकम्स 10 का बाइनरी विच मीन्स ए एंड 4 का बाइनरी दैट बिकम्स 4a, बट इन जनरल टर्म्स in decimal system 4a doesn't exist, answer should be 50, right? तो इस केस में हम क्या करते थे कि हम वहाँ पे कुछ इनवैलिड केसेस के अगेंस्ट कुछ करेक्शंस परफॉर्म करते थे। कैसे करेक्शंस करते थे कि मैं कुछ 6 का बाइनरी ऐड करती थी सर्टेन नंबर्स के अंदर, सर्टेन केसेस में जहाँ पे इनवैलिड केसेस एग्जिस्ट करते थे। अगर आपको मैं क्विकली रिव्यू कर दूँ वो केसेस तो क्या थे, देयर वर 3 केसेस इन टोटल, जिसमें से एक वैलिड केस था और जो 2 केसेस थे वो इनवैलिड थे। कि इफ वी आर चेकिंग निबल बाय निबल एंड एवरी 4 बिट्स, सो जब हम उनको ऐड करते हैं आंसर शुड बी 9 और लेस देन 9, राइट। 9 से 9 तक है नंबर, यानी 9 से छोटी वैल्यू है, लेस देन और इक्वल टू 9 है, बिटवीन 0 to 9 है, एंड देर इज नो कैरी आउट, ऑक्सिलरी कैरी और फाइनल कैरी, देर इज नो कैरी आउट, देन दैट इज अ वैलिड केस। बट इफ आई हैव अ वैल्यू इधर ग्रेटर देन 9, जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, यहाँ पे वैल्यू इज विद इन द रेंज और कोई भी कैरी आउट भी नहीं है, दैट मीन्स ये वैलिड केस है। यहाँ पे ये केस वैलिड नहीं है क्योंकि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 9। Another case was that ये वैल्यू तो लेस देन 9 है लेकिन देर इज अ कैरी आउट, इधर देर इज एन ऑक्सिलरी कैरी और देर इज अ फाइनल कैरी। तो जब आपके पास कैरी आउट आता है और आपके पास ये वैल्यू 9 से लेस होती है तब भी इट मीन्स दैट आपका आंसर जो है वो इनवैलिड एंड यू हैव टू मेक द करेक्शंस। वो करेक्शन हम कैसे करते थे, वी यूज टू ऐड द बाइनरी ऑफ 6 का बाइनरी हम ऐड करते थे वहाँ जहाँ पे इनवैलिड केसेस बनते थे। जैसे कि इस केस में सिर्फ इस निबल में इनवैलिड केस है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 का बाइनरी ऐड किया, और इफ आई मे से कि इस पूरी वैल्यू में मैंने 0 6 का बाइनरी ऐड किया। ये यहाँ पे मैं इसको ऑल जीरोस लिख सकती हूँ ना, ऑल जीरोस, दैट मीन्स कि मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। 0 6 का बाइनरी मैंने इस पूरी वैल्यू में ऐड कर दिया। तो अब अगर आप आंसर देखें तो दैट इज एग्जैक्ट 50। That's how you used to make corrections in BCD addition. DAA basically performs or checks the same problem कि if there are BCDs and BCDs के केस में कोई उनके एडिशन में अगर हमने DAA लिखा हुआ तो एडिशन के केस में, अगर हमने DAS लिखा हुआ तो सब्ट्रैक्शन के केस में। Are there any invalid cases? If yes, then you will processor will automatically correct that and give you answer into simple decimal numbers. अगर let's suppose ये AL again this will be performed on accumulator only. मेरे पास 8 बिट का accumulator था, फॉर इंस्टेंस यही वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होगा, ये चेक करेगा कि लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9। मैंने कहा था वी आर चेकिंग निबल बाय निबल, वी आर नॉट चेकिंग द होल डेटा, वी आर चेकिंग निबल बाय निबल। तो ये 8 बिट था चूंकि, तो यहाँ पे 2 केसेस हैं कि वो लोअर निबल में चेक किया इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन n और ऑक्सिलरी फ्लैग इज इक्वल टू 1। अगर तो ये इनमें से दोनों या कोई एक एग्जिस्ट करती है कंडीशन, दैट मीन्स देयर विल बी इनवैलिड केस, एंड when there is invalid case you will add binary of 6। तो मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे इस केस में या तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इस पार्ट पे इस निबल पे 6 ऐड किया, या मैंने ओवरऑल आंसर में 0 6 का बाइनरी ऐड किया। 0 6 मैंने इसीलिए लिखा था यहाँ पर, ठीक है। Similarly, when we'll check higher byte, higher nibble, तो higher nibble में as we checked कि क्या तो वैल्यू ग्रेटर देन 9 है
या कैरी फ्लैग। इस केस में तो ऑक्सिलरी कैरी होगा ना जिसमें कैरी जाएगा, क्योंकि ये निबल के बाद कैरी है, और यहाँ से जो होगा वो फाइनल कैरी में जाएगा, इसलिए हम दोनों को चेक कर रहे हैं। फाइनल कैरी में इज देयर अ 1 और द वैल्यू इज ग्रेटर देन 9, यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं है। वैल्यू इज विद इन 9, 0 to 9, विच इज वी सी दैट इट इज 4, एंड देयर इज नो फाइनल कैरी। दैट मीन्स कि ये जो है वो आउट ऑफ रेंज नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यू आउट ऑफ रेंज होती और यहाँ पे ना होती, यहाँ पे वैलिड केस होता, यहाँ इनवैलिड केस होता, तो तब हम क्या ये ऐड करते हैं 60 का बाइनरी, 6 and 0। आई होप दैट इज क्लियर। इट इज इजियर टू रिमेंबर कि आप ये कर लें कि जिस निबल में बेसिकली इनवैलिड केस आता है वहाँ पे हम 6 का बाइनरी ऐड कर देते हैं, सिंपल एज दैट। So ये सारा का सारा process instead के we perform ourselves, DAA instruction or decimal adjust after addition instruction handles everything like this. Similarly in case of subtraction, क्योंकि subtraction के case में भी यही issues आएंगे कि if the value is equal to 9 or not, वो out of range तो नहीं जा रही, तो उस case में DAS will handle that issue। ठीक है। और इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन है दैट इज AAA। AAA इज स्पेसिफिक फॉर ASCII डेटा। व्हाई आर वी यूजिंग ASCII डेटा? ASCII का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस आपके प्रोसेसर के साथ अटैच्ड है कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज हैं, अगेंस्ट ऑल ऑफ देम देयर आर ASCIIs, नॉट ओनली फॉर अल्फान्यूमेरिक एंड letters, but also for the numeric value there are ASCIIs. For instance, you are entering some ASCIIs from your keypad, तो उस केस में भी the number will be stored as a BCD number, and then again when addition or subtraction will be performed, तो उस केस में ASCIIs की ऊपर BCD में कोई ऐसे इश्यूज ना आए, या BCD addition या subtraction में इस तरह के इश्यूज ना आए, that is handled by AAA instruction. So when you give some instructions like this, it actually handles everything on a processor level. So AAM is again used when multiplication is processed performed. Again जितने भी operations हमने पढ़े हैं नॉर्मल बाइनरी के ऊपर, उतने ही ऑपरेशंस हम BCD के ऊपर भी तो परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो सिमिलर इन दैट केसेस AAM will be also considered when you are using ASCIIs and BCDs of the ASCIIs. So I hope this topic is clear, and with this we are coming to an end of our, we have discussed the compare instructions already. So again अगर आप देखें तो इसके अंदर देख के परेशान ना हो कि इसके अंदर compare instruction 3 दफ़ा लिखी हुई है और मैम ने 1 दफ़ा करवाई है। The thing is I told you कि it is a difference of how addressing modes are presented. Like ये वाला compare is same compare, लेकिन उसमें दोनों रजिस्टर्स को कंपेयर, रजिस्टर की वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा है, which means your addressing mode is, which addressing mode it is, register addressing mode. Similarly you are going from memory to register, and memory location में कोई value है और register में कोई value है, you are comparing those, so that means that this is the case where direct addressing mode is used. And we have a comma data which means accumulator. अच्छा यहाँ जहाँ जहाँ पे भी a लिखा होगा that represents accumulator, but in case of 8086 हमने डिस्कस किया है कि accumulator जो है उसकी फॉर्म्स जो हो सकती हैं AL, AX and DX AX हो सकती हैं। that is why यहाँ general a लिखा हुआ है, that means कि that is accumulator. So you are giving some data and you are comparing it with accumulator की value, right? तो लेकिन सिंटेक्स में यहाँ a नहीं होगा, यहाँ पे सिंटेक्स में जो स्पेसिफिक accumulator आप यूज कर रहे हैं वही होगा। ठीक है। With this we have completed all our arithmetic instructions so far. हमने कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का सेट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास कुछ और जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट वो रह गए हैं, वो हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें मूव पुश पॉप की कमांड्स आ जाती हैं।
ये बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा, इसका बहुत एक छोटा सा वो बन जाएगी एक वीडियो आपके लिए। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी अगेन, क्योंकि आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत डिटेल में पढ़े होते हैं, तो दिस कैन बी वेरी क्विक। सो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि आपको शेयर हो जाएगी। देन प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑलरेडी भी हमने एड्रेसिंग मोड्स में भी कवर किए हैं। देयर अगेन वेरी क्विक। मे बी ये हो सकता है कि मैं इन तीनों के कंबाइनली एक लेक्चर जो है वो बना दूँ, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस विल टेक टाइम, तो आई विल सी अबाउट इट। एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो one by one we'll complete all the data instructions, all the instruction sets. Instruction sets is not only taught because they are present in assembly language, because they are tools you use to do your programming. जब तक आपको इनके background, इनका usage समझ नहीं आएगा, you cannot use them in your programs. So you cannot, whenever you learn programming, you don't memorize the programs, you learn the technique and then you formulate your own programs, right? और आप लोगों को पता है कि उसके साथ साथ आप लोग जो लैब क्लासेस होती हैं उसमें आप अपने साथ साथ जो है ये इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। So with this, the lecture is coming to an end. I hope कि आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होगा, otherwise we can discuss it in the lecture जो कि डिस्कस हो जाएगा आपके ऑनलाइन सेशन के दौरान। लेट्स जस्ट क्विकली रिव्यू, हमने क्या क्या पढ़ा था। CWP पढ़ा है हमने DAA इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, TS इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, CWD negation, compare, increment and decrement. So with this all arithmetic instruction set is completed, and we are concluding this session for now. Allah Hafiz.